Assalamualaikum friends. Hello everyone. So, friends, let's start with accounting standard 16 borrowing cost. Right? Now, as we know, first our question is what do you mean by borrowing cost? You all know that whenever we start this standard, we start with the meaning of the concept that standard wants to talk. So your standard wants to talk about borrowing cost. So let's understand what this borrowing cost means, right? Actually, the standard is just here to deal with the accounting treatment of borrowing cost, whether it should be capitalized or it should be expensed, right? See, whenever a borrowing cost is incurred, there is only and only two options of the treatment. Standard talks about those borrowing costs that must be capitalized, right? So whichever cost we will see here, that all will be capitalized, that will be added to the asset, right? Howsoever, other than those discussed here, all those borrowing costs will be expensed out, charged to P&L. That it is a revenue expenditure and it will be debited to profit and loss account, right? Now, what do you mean by borrowing cost? So borrowing cost, if you can understand that borrowing means you are here somewhere borrowing your money, right? So you have taken a fund, matlab you have taken an amount on loan, right? You have borrowed money. Now you have incurred some cost on such loan, that is termed to be borrowing cost. I hope you are getting my point. When you have borrowed money, you are incurring some cost on this borrowing, is termed to be the borrowing cost. Now this cost, the expense that you are incurring on this borrowing, this cost is termed as borrowing cost. Now if you can imagine, which kind of borrowing cost do you incur on loan, on borrowing? Say you have taken home loan, right? Or you have taken a business loan, right? Or you have taken a loan to construct a building, or you have taken a loan for your renovation, right? So when you have taken such loan, maybe for a tenure of 10 years, then what cost you will incur for this borrowing? First of all, when you go to borrow money from bank, you will incur processing fees. Yes, am I right? So processing fees is one kind of borrowing cost. Thereafter, you need to pay interest to bank. Bank will not give you the money in free, right? So you will pay interest to bank. So the amount of interest paid over 10 years will also be termed to be your borrowing cost. Also, there are other costs, that is premium, discounts on loan, right? This premium discount you will understand somewhere in AS 11. Thereafter, exchange differences, when you have taken loan from foreign countries, right? There will be exchange difference in your interest amount, in your principal amount. That will be also be covered here, yeah. So just borrowing cost does not include interest. Whenever you listen borrowing cost, your mind strikes that interest. सिर्फ इंटरेस्ट इसमें नहीं इंक्लूड होता है, it also includes all this ancillary costs, right? So now let's understand the definition. So the definition is borrowing costs are interest and other costs incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds, right? So जो भी आपने फंड्स बोरो किए हैं, आप उसके लिए चाहे इंटरेस्ट पे करें या फिर और कोई भी चार्जेस इनकर करें, तो उन सभी कॉस्ट को आप क्या बोलेंगे? बोरोइंग कॉस्ट. ठीक है. नाउ बोरोइंग कॉस्ट के इन लोगों ने एग्जाम्पल दिए हुए हैं. सी इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बोरोइंग. इंटरेस्ट तो आपको बेसिकली पता ही है, राइट? अभी कमिटमेंट चार्जेस, आपने लोन का कमिटमेंट दे चुके हैं कि आप इतने टाइम में अपना लोन रिपे कर देंगे, और आप उसको रिपे नहीं कर पाते हैं, तब आप उनको कमिटमेंट चार्जेस भी पे करते हैं इंटरेस्ट के साथ, राइट? सो समवेयर इंटरेस्ट, कमिटमेंट चार्जेस, देन आई एम सॉरी, yes,
देन अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरोइंग्स, राइट, जो भी डिस्काउंट और प्रीमियम पे आपका बोरोइंग्स हुआ है उसका अमोर्टाइजेशन, वो भी आपका ये बोरोइंग कॉस्ट हुआ। फिर एंसिलरी कॉस्ट, जैसे कि मान लो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फीस है, वो आपका एंसिलरी कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर फिनांस चार्जेस फॉर एसेट्स अक्वायर्ड ऑन फिनांस लीज, फिनांस लीज पे अगर आपने कोई एसेट अक्वायर किया हुआ है तो उसके भी फिनांस चार्जेस आप पे कर रहे हो, एंड दैट विल बी ऑल्सो टर्म टू बी बोरोइंग कॉस्ट। एंड एक्सचेंज डिफरेंसेस, ये कब आता है एक्सचेंज डिफरेंस? व्हेन यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, राइट, दैट इज यू हैव लोन इन फॉरेन करेंसी। आपने रूपी में, इंडियन रूपी में लोन नहीं लिया है, बट यू हैव टेकन लोन इन फॉरेन करेंसी, राइट। सो in that also the exchange difference will arise when you will pay interest and principal, right? So this exchange difference will be considered to be adjustment to interest cost, right? because जो exchange difference arise हुआ है वो आपका interest और principal के payment पे arise हो रहा है, तो वो interest का adjustment ही consider किया जाएगा। तो ये सभी है borrowing cost, right? now हमने समझ तो लिया बोरोइंग कॉस्ट है क्या, लेकिन अभी बात आती है कि चलो बोरोइंग कॉस्ट तो है, लेकिन कब हम उसको कैपिटलाइज करें, कौन सी चीज़ों पे अगर आप लोन लो तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट आपको कैपिटलाइज होगी, या फिर कौन से पीरियड तक आप उसको कैपिटलाइज कर पाएंगे, ये सभी हमें पढ़ना है। So first of all, A16 says that whenever there is a qualifying asset and you incur borrowing cost on such qualifying asset, then you have an option, or you have a benefit of capitalization. Now first we will see what we will learn one by one. First we will see what this qualifying asset means. Thereafter we will see on what you do, which activity you do, then you can get the benefit of capitalization, in under which period, under which tenure you get the benefit of capitalization, right? And from when to start the capitalization, when to stop the capitalization, when to suspend the capitalization, and the disclosure requirements of the standard. We will learn each and everything. Now somewhere coming our topic to qualifying asset. एक्चुअली यहाँ पे तो हमने ये पढ़ा है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में, तो मुझे आपको ले जाना चाहिए था बोरोइंग पे कि टाइप्स ऑफ बोरोइंग क्या है, फिर एक्सचेंज डिफरेंस वाला हमने पढ़ा तो उस पर एक बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, एक डिटेल टॉपिक है, कंसेप्ट है, उस पर ले जाना था। लेकिन यहाँ पे एक बार हम समझ लेते हैं कि क्वालिफाइंग एसेट क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ जाए कि आपको उस बोरोइंग कॉस्ट से क्या करने का है, ठीक है। A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. So, एक तो वो प्रिपेयर हो रहा है, राइट, और वो प्रिपेयर हो रहा है एसेट, और वो इतना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है कि वो अपना रेडी होने में, मतलब आप उसको यूज़ कर सके या फिर उसको सेल कर सके। यूज़ दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट योर एसेट, आप एसेट्स को यूज़ करने वाले हैं अपने बिजनेस में, और सेल करेंगे तो वो है आपका स्टॉक इन ट्रेड। सो क्वालिफाइंग एसेट दोनों ही है, एसेट भी है और इन्वेंट्री, दोनों की बात कर लेता है। जो भी इन्वेंट्री सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है उसको बनने में, उसको रेडी होने में, सेल पर्पस के लिए, राइट, तो वो सभी भी यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट में कवर होगी। तो इतना कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे एसेट लिखा मतलब हम सिर्फ बैलेंस शीट एसेट साइड में एसेट्स, फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड की भी बात करते हैं, ठीक है ना। अभी हमें समझ आया कि क्वालिफाइंग एसेट होता क्या है, लेकिन ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या मैम, आपको ये सवाल आएगा, राइट। तो सब्सटेंशियल पीरियड मतलब यहाँ पे कोई उसकी डेफिनेशन एक्चुअल में नहीं है, ये केस टू केस पे डिपेंड होता है। सब्सटेंशियल पीरियड के लिए ऑर्डिनरीली स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है कि ऑर्डिनरली आप ऐसा मानो कि 12 मंथ्स का टाइम ले लो, मतलब एक साल में ये आपका स्टॉक है, आपका एसेट है, वो बन नहीं चुका है, उससे ज़्यादा वो टाइम ले रहा है, तो इट इज़ टू बी टर्म टू बी सब्सटेंशियल पीरियड। ऑर्डिनरली 12 मंथ्स का टाइम उन्होंने दिया हुआ है, बाकी वो केस टू केस पे डिपेंड होता है। 12 मंथ से भी कम है लेकिन वो
एक सफिशिएंट टाइम पीरियड ले रहा है, एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड ले रहा है, तो इट कैन बी ऑन अ रीजनेबल जस्टिफाइड बेसिस, इट कैन बी टर्म टू बी अ क्वालिफाइंग एसेट, राइट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है वाइन। वाइन को बनने में बहुत समय लगता है, राइट। तो वाइन एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप उसको क्वालिफाइंग एसेट बोल सकते हैं। फिर आप बिल्डिंग को भी बोल सकते हैं। बिल्डिंग ऑर्डिनरीली 12 मंथ के पीरियड में नहीं खड़ा हो सकता है, राइट। तो बिल्डिंग को बनने में सालों साल लग जाते हैं, कहीं पे 2 साल, कहीं पे 3 साल। हाँ, और कहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा सभी इंटीरियर के साथ आपको पूरा अच्छे से देने का होता है, तो या फिर एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, वहाँ पे टाइम लग जाता है, राइट। तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंड्स, राइट। तो ये बिल्डिंग भी यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। फिर प्लांट एंड मशीनरी। जब इंटेंजिबल की बात करें तो पेटेंट्स को भी बनने में टाइम लगता है, तो दे टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अभी हम इस सब्सटेंशियल पे एक अच्छा सा डिस्कशन यहाँ पे डाउन में करेंगे। एक पहले यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एग्जांपल्स देख लेते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स के। तो एग्जांपल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जनरेशन फैसिलिटीज, इन्वेंटरीज दैट रिक्वायर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग them to sellable condition, and investment properties. Other investment and those inventories that are routinely manufactured or otherwise produced in large quantities on a repetitive basis over a short period of time are not qualifying asset. जो रूटीनली मैन्युफैक्चर हो रहा है रिपीटेटिव बेसिस पे या शॉर्ट पीरियड में बन जा रहा है, उसको हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे। अभी यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट में तीनों चीज़ आ गई। आपका हर कोई एसेट, चाहे वो फिक्स हो या टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, मार्क माई वर्ड, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैम आपने ये बोला था कि बिल्डिंग, मतलब मैंने ऐसे सोच लिया कि फिक्स एसेट ही आएगी। नहीं यार, यहाँ पे फिक्स भी हो सकता है, दैट इज टेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है, फिर इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, और आपकी इन्वेंट्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट इस सब में से हर चीज हो सकती है। कौन सी? टेंजिबल एसेट्स, राइट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हुआ पूरा हमारा डिस्कशन क्वालिफाइंग एसेट्स पे, जो हर रोज़ाना बिके जाते हैं। मानो पॉन्ड्स पाउडर है, पॉन्ड्स पाउडर रोज़ाना बनते हैं, रोज़ाना बिकते हैं, तो दैट कैन नॉट बी टर्म टू बी अ क्वालिफाइंग एसेट। रिपीटेटिव बेसिस पे जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, रूटीनली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, उन सभी को हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे, राइट। नाउ accounting standard further clarifies that the meaning of substantial period of time. According to it, substantial time primarily depends on facts and circumstances. As I said, it depends on facts and circumstances. Ordinarily, a period of 12 months is considered as substantial period of time. So ordinarily a period of 12 months, highlight this, 12 months है वो ordinarily माना जाता है substantial period। बाकी you can justify on the facts and circumstances के इससे भी shorter period हमारा qualifying asset के लिए है substantial period, right? Now, in estimating the period time which an asset takes technologically and commercially to get it ready for its intended use or sale should be considered. तो टेक्नोलॉजिकली और कमर्शियल बेसिस पे पूरा एक एसेट को बनने में, उसके यूज पर्पस के लिए या फिर उसके सेल पर्पस के लिए रेडी होने में जितना टाइम लगता है, उसको हम उस टाइम को हम यहाँ पे एस्टिमेट करवाएंगे, राइट। उस टाइम को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये तो हुई उस टाइम की एस्टिमेशन की बात। अभी मैंने आपको यहाँ बोला कि यहाँ पे हमने एक एक्सचेंज डिफरेंस वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया, लेकिन ये बहुत डिटेल में, बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें पढ़ने का है आगे। तो इसका पूरा डिस्कशन यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंसेस का है। नाउ एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन फॉरेन बोरोइंग। पहले तो ये डिफरेंस कब अराइज होगा? जब आपने लोन फॉरेन करेंसी में लिया है, फॉरेन कंट्री से आपने बोरोइंग किया है। जनरली कभी कभी बिजनेस में बड़े पाए पे बिजनेस होता है, तब ऐसा होता है कि बिजनेसमैन ऐसा सोचता है कि मेरे एंटिटी में मैं अगर लोन इंडियन रुपी में लूँ, मतलब कि इंडिया से लूँ, इंडियन की बैंक से लूँ, तो वहाँ पे मेरा बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर हो रहा है एज कम्पेयर टू द लोन टेकन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, राइट, इन फॉरेन करेंसी। तो वो ऐसा सोचता है कि नहीं, मेरे को बेनिफिट वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, बोरोइंग कॉस्ट कम इनकर हो रही है, तो दे टेक लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसीज, राइट। ऑल्सो मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो वो भी फॉरेन करेंसी लोन लेती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ वो तो बहुत ही यूज में है ये कॉन्सेप्ट।
अभी इसका हमें डिटेल डिस्कशन देखने का है। कौन से एक्सचेंज डिफरेंस को आप बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, मतलब कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बोरोइंग कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा है बोरोइंग, कौन सा एक्सचेंज डिफरेंस है जिसको आप यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट में कंसिडर करेंगे। मानो कि लोन जब आपने रीपे की तो लोन पे भी आपको एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, फिर इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे भी आपको एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है, प्रोसेसिंग फीस में भी आपको इंटरेस्ट डिफरेंस आ सकता है, तो ये सभी में आपको आ सकता है। लेकिन कौन से एक्सचेंज डिफरेंस है जो आपके यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज होंगे, राइट, ये चीज़ हमें समझने की है। So, exchange differences which arise on the amount of principal of foreign currency borrowings to the extent of difference between interest on local currency borrowings and interest on foreign currency borrowings. See, borrowing cost में कौन से differences को हम include करेंगे। See, exchange difference arise on amount of principal of foreign currency borrowings. प्रिंसिपल के रिपेमेंट में जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ उसको हम बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। कौन से एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। मतलब आप अगर ये अमाउंट लोकली बोरो करते तो आपको कितना इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता, और आपने अभी फॉरेन से कंट्री से लोन लिया हुआ है तो आपको कितना इंटरेस्ट बेयर करना पड़ रहा है, उसका जो डिफरेंस आएगा उसको उस हद तक आप आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट वाला एक्सचेंज डिफरेंस है उसको बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो मार्क दिस एज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से एग्जाम में देख के जाने का है, राइट। इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर योर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होते जाते हैं, स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तो ऐसा हमारे केस में नहीं होना चाहिए, राइट। वेरी मच इम्पोर्टेंट। LDR लास्ट डे रिवीजन पे देख के जाने का है ये टॉपिक आपको। नाउ, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग and considered as borrowing cost are those exchange differences which arise on amount of principal of foreign currency borrowings, right। principal पे जो exchange difference आया वो to the extent of difference between interest on local currency borrowings and interest on foreign currency borrowings। कौन सी हद तक जो लोकल करेंसी बोरोइंग्स एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स के इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा उस हद तक आपको प्रिंसिपल का एक्सचेंज डिफरेंस बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज करवाने का है। नाउ, thus the amount of exchange difference not exceeding the difference between interest on local currency borrowings and interest on foreign currency borrowings is considered as borrowing cost to be accounted for under this standard। ठीक है, जो ये इतना एक्सटेंड है वो आपका बोरोइंग कॉस्ट बोला जाएगा A16 के हिसाब से, और बाकी का जो एक्सचेंज डिफरेंस रह गया, राइट, हमने बोला ना कि एक्सचेंज डिफरेंस ऑन प्रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट ऑफ दैट डिफरेंस, उससे आगे भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है जो डिफरेंस में आ रहा है, राइट, तो जो बाकी का बैलेंस अमाउंट रहेगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट बैलेंस अमाउंट है वो आप AS11 के हिसाब से एक्सचेंज डिफरेंस बताएंगे, राइट। AS11 हम आगे पढ़ेंगे। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। Now, for this purpose, the interest rate for local currency borrowings is considered as that rate at which enterprise would have raised borrowings locally had the enterprise not decided to raise foreign currency borrowings। तो interest on local currency borrowings मतलब क्या कि आपने अगर यहाँ पे लोन ली होती, यहाँ से लोन ली होती अपने होम कंट्री से, राइट, अपने लोकल करेंसी में, तो आपको कितना इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता उसको हम लोकल करेंसी बोरोइंग्स का इंटरेस्ट बोलेंगे। नाउ, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में दे दिया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दोनों केसेस कवर हो जाएंगे, कब AS11 कब AS16 और कब AS11 में कोई अमाउंट बाकी ही नहीं रहता है तो क्या, राइट। तो ये सभी चीज़ें एक बहुत अच्छा सा वाइड एग्जाम्पल है सभी सिचुएशंस को कवर करके, राइट। तो इस एग्जाम्पल को भी आई होप यू मस्ट मार्क इट एज एन इम्पोर्टेंट एंड प्लीज रेफर इट ऑन फॉर योर लास्ट डे रिविजन। नाउ, the example says XYZ Limited had taken loan of $10,000 US, right। $10,000 का उन्होंने लोन लिया हुआ है।
फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ है। सो हियर वी अज्यूम कि ये प्रोजेक्ट हमारा क्वालिफाइंग एसेट में क्वालिफाई कर जाता है। नाउ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम पेएबल एनुअली। इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम। कौन से के लिए? फॉरेन करेंसी बोरोइंग के लिए या लोकल करेंसी? राइट, फॉरेन करेंसी बोरोइंग के लिए ये इंटरेस्ट का रेट दिया गया हुआ है। नाउ on April 1, 2016, the exchange rate between currencies was 45 per dollar। मतलब कि exchange rate कितना था? ₹45 per dollar। The exchange rate as at 31st March 2017 is 48 per dollar। So on the date of balance sheet और at the reporting date आपका exchange rate कितना हो चुका है? 48। Right, the corresponding amount could have been borrowed by XYZ Limited in local currency at an interest rate of 11% per annum as on 1st April 2016। Right, अगर आप यही लोन इंडियन रूपी में लोकल करेंसी में बोरो करते तो आपको रेट कितना होता? 11%। ठीक है, तो 11% आपका इंटरेस्ट रेट होता। तो ये लोकल करेंसी बोरोइंग्स का रेट मिल गया, ये आपका फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स का रेट मिल गया, उस दोनों से आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा और आपका प्रिंसिपल का रिपेमेंट का डिफरेंस है वो 48 माइनस जो ओरिजिनल था 45। राइट, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रिंसिपल लायबिलिटी का एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो जाएगा। उस हिसाब से आप AS11 और AS16 का देख लेंगे ना। The following computation would be made to determine the amount of borrowing cost for the purpose of para 4E of AS16। अभी उन्होंने सभी computations यहाँ पे करके हमें दिखाए हैं। पहले तो हमें क्या फाइंड आउट कर लेना चाहिए? हमें बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड करने के लिए पहले तो प्रिंसिपल रिपेमेंट का लायबिलिटी का एक्सचेंज डिफरेंस हम कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा 48 माइनस 45 इंटू $10,000 हमारा हो जाएगा। So increase in liability towards principal amount 10,000 into 48 minus 45। ठीक है, right? I hope it is clear। So 30,000 हमारा हो गया increase in liability towards principal repayment, right? मैंने इसको अपने चार्ट में बी करके डिनोट किया हुआ है। आपको मैंने एक फॉर्मूला ही दे दिया है, अगर आप उस फॉर्मूला को फॉलो कर ले तो एक्चुअली आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं ये फॉर्मूला इसलिए भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे तो आप सभी मगअप कर लेंगे, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। राइट, तो हम ये फॉर्मूला की आगे बात करते हैं। यहाँ पे पहले एक रुक जाते हैं। नाउ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, अभी हमारा 5% इंटरेस्ट है फॉरेन करेंसी बोरोइंग का। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा? $10,000 इंटू 5% इंटू 48। एट द ईयर एंड 48 था, तो ये आ गया हमारा अमाउंट 24,000। ठीक है ना। नाउ इंटरेस्ट दैट वुड हैव रिजल्टेड इफ यू हैव टेकन इंडियन करेंसी लोन, लोकल करेंसी में तो आपका रेट कितना था? 11%। ठीक है ना, तो 10,000 इंटू 11% एज ऑन डेट ऑफ 1 अप्रैल 2016 का ये रेट है। So you need to take this exchange rate as on 1 April 2016, that is 45, right? तो यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो जाए। सी 45 इंटू 11%, ये आ गया आपका 49,500। अभी हमें क्या बोला था? इन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें लेने का है और ये प्रिंसिपल का जो एक्सचेंज डिफरेंस है उस हद तक हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो पहले 49,500 माइनस 24,000 कितना आया? 25,500। और हमारा इंक्रीज इन लायबिलिटी कितना था? आप अगर यहाँ पे देखें तो 30,000 था, तो माइनस 30,000। राइट, तो ये जो 25,500 है आप इतना कैपिटलाइज कर सकते हैं A16 के हिसाब से, बोरोइंग कॉस्ट बोला जाएगा। और बैलेंस जो अमाउंट आएगी 4,500, राइट, वो आपका AS11 के हिसाब से एक्सचेंज डिफरेंस हो जाएगा। आई होप यू आर वेरी क्लियर। मैं फिर से एक बार समझाती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है आपको और आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या कंप्यूट किया कि इंटरेस्ट है आपका जो
वो फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स का, लोकल करेंसी बोरोइंग्स का, दोनों इंटरेस्ट आपने कंप्यूट कर लिया और प्रिंसिपल लायबिलिटी का एक्सचेंज डिफरेंस। पहले हमने 48 माइनस 45 इंटू 10,000 ये हमारा इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ प्रिंसिपल के लिए, वो हमने कंप्यूट कर लिया 30,000, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारे बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होने वाला है। कौन सी हद तक ये अमाउंट हमें पता चलेगी, लेकिन ये पोर्शन जो है कौन सी प्रिंसिपल लायबिलिटी वाला एक्सचेंज डिफरेंस, वो पोर्शन इसमें कंसिडर होगा। तो पहले हम ये कंप्यूट कर लेते हैं। फिर हमने कंप्यूट किया इंटरेस्ट, जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स पे 5% का रेट एट द ईयर एंड 48 का रेट, राइट, तो वो 24,000 आया। और अगर लोकल करेंसी होता तो 11%, 10,000 इंटू 45 तो 49,500। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 25,500 आता है। ये 25,500 आपका AS16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट हो गया। अभी ये था 30,000, आप 25,500 AS16 में ले जा सकते हैं, तो बैलेंस का क्या होगा 45,500 का, तो वो होगा आपका AS11 के हिसाब से एक्सचेंज डिफरेंस। बहुत ही हटके टॉपिक है। अगर मैं AS11 पहले पढ़ाती तो वहाँ पे मैं बोलती कि आपको रुकना पड़ेगा, AS16 में जाना पड़ेगा पहले, और वहाँ पे जाके मैं आपको समझाऊंगी कि AS11 का थोड़ा सा पोर्शन बोरोइंग कॉस्ट वाला यहाँ पे AS16 में जाएगा। तो मैं अभी रिवर्स मतलब AS16 पहले पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि इतना सा पोर्शन जो बैलेंस रहता है वो आप AS11 के हिसाब से एक्सचेंज डिफरेंस बताएंगे। AS11 एक्चुअली एक्सचेंज डिफरेंसेस की बात कर रहा है, जो भी आपने फॉरेन ट्रांजेक्शन्स किए हैं, आपका ऑपरेशन है, उसके बारे में बात करता है, राइट। तो हम वो वहाँ पे देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। तो आई होप यू आर क्लियर, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई। मैंने फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये जो भी चारों दिए थे मैंने उसका एक फॉर्मूला ही बना लिया है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है कि कौन सा डिफरेंस कौन सा। बट अगर आप समझ लेंगे कि AS16 में पोर्शन लायबिलिटी का एक्सचेंज डिफरेंस का आएगा प्रिंसिपल लायबिलिटी का, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर आपने एक बार समझ लिया कि प्रिंसिपल का एक्सचेंज डिफरेंस आपको बोरोइंग कॉस्ट कंसिडर करना होगा, और कौन सी हद तक दोनों इंटरेस्ट लोकल करेंसी बोरोइंग एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग का डिफरेंस का इंटरेस्ट डिफरेंस के एक्सटेंट तक का एक्सचेंज डिफरेंस आपको AS16 में कंसिडर करना होगा। कंसेप्चुअली आप इतना समझ ले तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरी श्योरिटी है। लेकिन फॉर सम स्टूडेंट्स हमें ऐसा एक मैंने आसानी के रूप के लिए मैंने उसको एक फॉर्मूला दे दिया है। तो फॉर्मूला ये है, मैंने ये जो फर्स्ट कंपटीशन किया उसको मैंने टर्म आउट किया A, इसको किया B, इसको किया C और इसको किया D, राइट। नाउ सी